تو یہاں پر پینے کے پانی کے لیے پرائیویٹ ٹینکروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور پرائیویٹ ٹینکر ایک مافیا بن چکے ہیں۔ آپ مجلس کے امیدواروں کو کارپوریٹر منتخب کریے، جو لوگ آپ کو پانی نہیں پلائے، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے گھروں کا پانی بند کر کے اکولا کے غریب جنتا کو پانی پلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ ٹیکس اتنا بڑا دیا گیا کہ آخر یہ غریب اس مہنگائی کے دور میں ایک عام آدمی کیسا ٹیکس ادا کرے گا؟ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکولا مہانگر پالیکا کے اسکول کی عمارتیں اتنی کمزور اور بوسیدہ ہیں کہ کبھی بھی گر سکتی ہیں۔ اسکول کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر بھی سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی رائے ہے کہ مجلس جب کہتی ہے کہ آپ مجلس کو ووٹ دو، تو مجلس یہ کہتی ہے کہ ووٹ اس لیے دو تاکہ تمہاری سیاسی لیڈرشپ بنے، اور جب تمہارا سیاسی نیتا بنے گا تو وہ ڈیولپمنٹ کا کام کروائے گا، اسکول کھلوائے گا، پینے کے پانی کا انتظام کرے گا۔ اگر گورنمنٹ سے لڑنا پڑے تو سب سے پہلے وہ آگے جا کر حکومت سے لڑائی لڑے گا۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 15 جنوری کے دن آپ اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے استعمال کریے۔ اور یاد رکھیے، سیکولرزم کی لوگ بات کرتے ہیں، جو لوگ فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی نے وقف جائیدادوں کو چھیننے کے لیے مساجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستانوں کو چھیننے اور ختم کرنے کے لیے ایک کالا وقف کا قانون بنایا، اور قانون بنانے میں پوری تائید اجیت پوار نے بھی کی۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اجیت پوار کی پارٹی کا کھنڈوا ڈال کر الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم کو تمہاری مسجد عزیز نہیں ہے؟ کیا تم کو وقف کی جائیدادیں عزیز نہیں ہیں؟ تم ایسے پارٹی کا ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہو جس نے مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنانے کے لیے مودی کا ساتھ کیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اس الیکشن کے ذریعے متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریں گے تو آپ ایک پیغام دیں گے نریندر مودی کو، اجیت پوار کو، شنڈے کو، کہ تم نے ایک ایسا قانون بنایا ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہم اس کے خلاف، تمہارے اس کالے قانون کے خلاف ووٹ دیں گے۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد، درگاہ، خانقاہ اور قبرستانوں کو چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں یہ کام ہو؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر 15 تاریخ کو آپ کو ان کے خلاف ووٹ دینا پڑے گا۔ یہ کالا قانون جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میری بات کو لکھ کر رکھ لو۔ آج یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسجد، درگاہ 100 سال سے پرانی ہے، پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے، تو اس کا مالک وقف بورڈ نہیں، اس کا مالک آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا، اور آثار قدیمہ نریندر مودی کے ماتحت آئے گا۔ کئی ایسے مساجد اور درگاہ مہاراشٹر میں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کا ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو صحیح استعمال کریے اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ بہت سے لوگ آئیں گے، کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب الیکشن جیتتے وقت ہمارے سے تھوڑی غلطی ہو گئی کہ یہاں سے ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں۔ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ میں یوسف بھائی کو بولا یہاں سے میرے کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔
लाठी मार रहे सुना यहाँ देखो डाई मार रहे। देख के एमएलए साहब से वहीं गिर गए तो तुम परेशान। अजीब माहौल है। कितनों को खुश करने जाएंगे तुम? चलो अपनी बीवी को खुश कर रहा, अपने शोहर को खुश कर रहा, बाबा को अम्मा को खुश कर रहा। नहीं, मैं सबको खुश करता हूँ। मेरे साहब ये काम मत करो, अल्लाह मौका दिया, तंग मत करो। और ये आपके जो बच्चे फिर रहे ना, ये जाके बच्चे दिखा रहे, आंख दिखा रहे, कुछ बोल रहे, मेरे साहब रोको ये बच्चों को। ये बच्चे हैं, यहाँ पर शेर आके खड़ा है। मैं आपके पार्टी के बड़ों से पंजा आजमाई करके उनको हरा के आ रहा हूँ यहाँ पर। हमारी पार्टी बिहार में 6 एमएलए, मेरे 5 एमएलए अकेले लड़े हम लोग। गठबंधन मिला के लड़े, बोले कि हम पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, कहां से आ गए। आकर बिहार में बोले कि ओवैसी को हराना है। मैंने कहा 5-6 गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए को कामयाब किया। आप देखिए, आपके वोट की कीमत और अहमियत ये होती है कि जहां से बिहार में मजलिस के एमएलए उम्मीदवार लड़ रहे थे, सब जाकर एक ही बात बोल रहे थे, ओवैसी बी टीम है, मजलिस बी टीम है, मजलिस वोट काटने के लिए आई, मजलिस उनको जिता देगी, मजलिस उनको ये करेगी। तो बिहार में 5 हमारे एमएलए जीते, उसमें 3 ऐसी विधानसभाएं जहां पर वहां की खवातीन ने अपना 90% वोट का इस्तेमाल किया। 5 में 3 विधानसभा जहां पर खवातीन ने 90% अपना वोट इस्तेमाल किया, उसमें 3 में मजलिस के एमएलए बने। तो मैं अकोला के हमारे बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारी इज्जतदार माओं से अपील कर रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाओ, अगर घर में भी आकर आपके मर्द लोग बोल रहे कि शेरवानी को मत देखो, तो आप बोले नहीं देखेंगे, मगर आसमान में पतंग पिलाएंगे 15 के दिन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एमएलए साहब को भी एक पैगाम देना चाह रहा हूं, आपको भी एक पैगाम दे रहा हूं। जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वंदे मातरम के 100 साल के तकमील पर जो हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, उस पर बहस हुई, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये जितने सेकुलर पार्टी के लोग हैं, इनकी तकारीर को सुनो, आप वक्त निकालो, मेरा यकीन मत करो इनकी जबानों से क्या निकल रहा था। और जब मुझे बोलने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया, तो मैंने उनको कहा कि भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? वी स्टेट्स की बात करता है। और भारत के संविधान को जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मैं उनको सलाम करता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में लिखा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, कि आपको आजादी है अपने मजहब पर चलने की, आपको सोच की आजादी है। मैंने कहा जब 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया, ये लिख कर दिया, तो कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग हमसे कह रहे कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। इस मुल्क के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है। मैंने नाम लिया यूसुफ मेहर अली साहब का, मरहूम का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप जानते यूसुफ मेहर अली कौन थे? कौन थे यूसुफ मेहर अली? यही तो मसला है मुसलमानों से कि तुमको अपने बुजुर्गों के नाम और उनकी कुर्बानियां याद नहीं है। यूसुफ मेहर अली वो आदमी था, बंबई में रहने वाले थे। महात्मा गांधी को जाकर कहा
کہ क्विट इंडिया का नारा अगर किसी ने दिया अंग्रेजों के खिलाफ तो उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। हसरत मोहानी कौन थे? शायर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कहा था इनकलाब जिंदाबाद। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जो लोग हमारे बुजुर्ग माल्टा की जेल में मौला महमूद उल हसन हुसैन अहमद मदनी जेल में थे, अगर आज कोई ये कहेगा इस मुल्क में रहना है तो खुला बोलना पड़ेगा, तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन बुजुर्गों को? बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन 26 को लिखा कल्चर के प्रोटेक्शन के बारे में। तो मैंने कहा कि आप ये जान लो कि मैं एक गयूर मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह से हटकर किसी और की इबादत नहीं कर सकता, मैं तौहीद का मानने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा मगर शिरक नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे को सिखाया गया है। और वतन की मोहब्बत हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर जा रहे थे तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मक्का मुझे तुझसे बहुत बड़ी मोहब्बत है, मगर यहाँ के लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। जब मदीना को गए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ की कि या अल्लाह हमको मदीने से मोहब्बत डाल दे, बल्कि मदीने को हमसे मोहब्बत डाल दे मक्का से ज्यादा। तो हमारा ईमान मुल्क की मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं बनता, मगर याद रखो हम शिरक नहीं कर सकते। और एमएलए साहब आप समझ गए होंगे मेरा पैगाम। गुलाटियां मत मारो एमएलए साहब, किसी के सामने झुकने की आदत छोड़ो, सिवाय रब के आगे झुकाना सर, ये सर कट जाए मगर झुकना नहीं चाहिए। इमाम हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया कि सर तो नहीं झुकेगा, आपने अपनी आल को कुर्बान कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों, आपको डरने और घबरे भाई व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट, इधर देखो यारो, पलटो इधर, इधर पलटो हीरो, आई एम हियर। हम तकरीर कर रहे तो हमको पीठ दिखाओ। नो यहाँ पे इतनी दूर से आया, मैं बम्बई से आ रहा हूँ गाड़ी से। आप कुर्सियां रहने दो, कुर्सी 15 तारीख के दिन पूरे 32 कुर्सियां अपने आने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज कर रहा था, सुनो आगे शेर आ गया, तुम्हारे भी शेर बनाने आया हूं। 15 तारीख को पतंग को डाले तो शेर होंगे, तुम डालेंगे ना या फिर भूल के चले जाएंगे? तो आपसे ये कह रहा था, मजलिस जब वोट आपसे पूछती है तो मजलिस इज्तिमाइयत की बात करती है। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं आया हूँ आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, ताकि जब आपका इत्तेहाद मजबूत होगा और अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज अकोला की बल्दिया में जाएगी। ये हमारे कॉर्पोरेटर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह, तो आपकी तकालीफ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ से अराकीन बल्दिया को कामयाब करो, मैं जिम्मा लेता हूँ इनसे काम कराने का। जितने अराकीन बल्दिया हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यूसुफ साहब और हम मिलकर उनसे काम लेंगे, उनको भगाएंगे ताकि अकोला में इंसाफ हो। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस को कामयाब करिए, मजलिस आपकी आवाज है। आखिर क्यों मजलिस के खिलाफ इस तरह की बातें और इल्जाम लगाया जाता है? मेरे भाई, एक मजलूम कौम के लिए संविधान आपको इजाजत देता है
कि आप अपनी क़यादत को मजबूत करिए। अगर संविधान इजाजत देता है तो हमको और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी बताया गया कि आराम सुनो भाई, रोको मत भाई, छोड़ो ना यार, छोड़ो ना। अरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहीं पे रोक रहे हो। ठहरो अभी जोश में आ गए। इतना करीब मोदी के रैली में आते, कोई अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते, शिंदे के रैली में आते, उद्धव ठाकरे के रैली में आते। ये अपना हमारा दिल का कनेक्शन है, बीच में ये दिल की मोहब्बत अल्लाह पैदा कर दिया है। और एक दीवाने को सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो तुम। मेरे को मालूम हुआ कि आज देवेंद्र फडणवीस भी आए थे अकोला को, आए थे। लोगों को बुलाए, तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले, तो सौ बुला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? पतंग के लिए आए ना। ये मोहब्बत है। दूसरे पार्टी लोग से तू 5 गाड़ी, तू 3 गाड़ी, तू 6 गाड़ी, यहाँ पर सब बोले अपना बाजार आने वाले। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को क्या होगा? अकोला की फिजाओं में क्या नजर आएगा? किस पर बटन दबेगा? किस पर बटन दबेगा? किसको जिताएंगे? मजलिस को कामयाब करेंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। जरा सेल फोन की लाइट खोलो ताकि मेरे साहब का दिमाग का लाइट खुल जाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.